ویلکم ٹو کانورسیشنز. میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست مقتدر خان، اور آج میں آپ سے یہ جو گوتم ادانی کی جو رہائی کی خبر آئی ہے اس کے بارے میں بات کروں گا. امریکہ کے ایک کورٹ نے جہاں پہ ان کو بیسکلی رہا کر دیا ود آؤٹ پریجوڈس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف وہ کیسز دوبارہ فائل نہیں ہو سکتے. بالکل ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف بری ہو گئے ہیں اس الزامات کے ساتھ، لیکن دوبارہ امریکہ کا کوئی بھی کورٹ یا کوئی بھی جج وغیرہ ان کے خلاف ان مدوں پر کیس نہیں کر سکتا. یعنی پوری طرح سے یہ رہا ہو چکے ہیں. He's got away with it. تو پہلے تو میں ذرا غور سے سنیے گا اس شو کو. میں آپ کے سامنے کئی چیزیں رکھنے والا ہوں اور یہ بھی بتانے والا ہوں کہ یہ کیس کیا تھا شروع میں. وہ تو میں نے ایک پہلے شو کیا، وہ جا کے دیکھ لیں. اور پھر ہوا کیا، اور پھر جج نے کیا ڈیسیشن لیا، وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ادانی جی کے لیے مبارکباد ہے، اب انہوں نے انڈیا کا کرپشن امریکہ میں بھی لے کر آ گیا ہے. تو جس طرح یہ انڈیا میں بزنس کرتے ہیں، اب وہ اسی طرح امریکہ میں بھی بزنس کرنے لگ گئے ہیں. تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس میں صاف، میں شروع میں ہی آپ سے صاف کہہ دوں گا کہ دس از ناٹ اے ججمنٹ جس میں گوتم ادانی کی انوسنس، یعنی ان کی معصومیت کو انڈورس کیا گیا. یعنی اس کیس سے آپ یہ نہ لیں ازمپشن کہ یہ گلٹی نہیں ہے. دس از ناٹ اے ناٹ گلٹی ورڈکٹ نہیں ہے یہ جج کی طرف سے. میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیا ہے. لیکن اس جج کے جو بیان اس نے دیا ہے، ایسا شاندار اس نے سٹیٹمنٹ لکھا ہے. آپ جا کے دیکھیں، کچھ 50-60 پیجز کا ہے. مجھے تقریباً 3 گھنٹے لگے جسٹ ٹو گو تھرو اٹ. تو اس ججمنٹ میں جج نے بیسکلی یہ کہہ دیا کہ نہ صرف گوتم ادانی کلیئرلی غلط ہیں، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایڈمنسٹریشن نے بھی کرپشن کے نشانیاں دکھائی ہیں. تو اس نے سیدھا الزام نہیں لگایا، بیکاز دا جج کا کام انویسٹیگیشن نہیں ہے. تو اس نے انکنسسٹنسیز اور انیوژول چیزیں کہا کہ بہت ہی انیوژول کیس ہے، ایسا کیس آتے نہیں ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. ہی سینڈ دا سگنل ویری کلیئرلی. اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ جج نے کہہ دیا کہ یہ بالکل شیڈی ججمنٹ ہے فرام دا ڈپارٹمنٹ آف جسٹس. اور میں وہ آپ کے لیے پورا کا پورا انریپ کروں گا. تو پہلے آپ یہ گوتم ادانی کا جو ٹویٹ ہے، جس کو تقریباً 25 لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا تھا میرے اس کا اسکرین شاٹ لینے سے پہلے. تو گوتم ادانی کہتے ہیں آئی ویلکم دا US کورٹس ڈیسیشن وتھ ہیوملٹی اینڈ ڈیپ ریسپیکٹ فار دا جوڈیشل پروسیس. یہ وکیل نے لکھا ہے کوئی، بیکاز انہوں نے یہ نہیں کہا آئی ویلکم دا US کورٹس ڈیسیشن ایگزونریٹنگ می، proving my innocence, declaring that I am innocent. ایسے کوئی چیزیں نہیں. بس انہوں نے کہا کہ جو بھی ڈیسیشن ہے کورٹ کا، وہ he has not implied or explained what the decision is. تو کورٹ کے بارے میں بس ایک ہی سینٹنس، I welcome the court's decision with humility and deep respect for the judicial process. ٹھیک ہے. Throughout this challenge آپ کے اوپر تو بھائی وارنٹ تھے 2 سال سے، آپ کے اوپر سپینس تھے، آپ آئی نہیں. وہاں پہ ہم کو پتا چل گیا کہ how much deep respect you have for the judicial process. Anyway, throughout this challenging period, our faith in truth، یعنی سچائی میں ہم کو یقین تھا، fairness and rule of law remained unwavering. Whose rule of law؟ انڈیا کا یا امریکہ کا؟ یہ امریکن لا کے مطابق ہوا، لیکن انڈین گورنمنٹ کے اوپر بھی اس جج نے کافی تانے کھینچے ہیں. My deepest gratitude to those who never lost faith in his وغیرہ وغیرہ. تو بیسیکلی انہوں نے کہہ دیا کہ میں اپنے نیشن بلڈنگ میں لگا ہوا تھا اور مجھے یقین تھا کہ مجھے یہ ڈیسیشن آئے گا. بٹ ہی ڈڈ ناٹ سے واٹ دا ڈیسیشن از، بیکاز اٹ از ناٹ اے ڈیسیشن ویئر ہی واز ایگزونریٹڈ. تو بیسیکلی کیا ہوا تھا، ادانی اور ان کے جو نیفیو وغیرہ ہے، گوتم ادانی اور ساگر ادانی اور ان کے جس نے ایسوسیٹ تھے، ان پہ کئی الزامات لگے تھے. ایک الزام یہ تھا کہ انہوں نے برائبز وغیرہ دیے ہیں فورن کنٹری میں. دوسرا انہوں نے کچھ فراڈز کیے ہیں، پھر وائر فراڈ، سیکیورٹیز فراڈ وغیرہ، جو فنڈ ریزنگ کرنے کی کوشش کی امریکہ میں. اس لیے بھی کیونکہ یہ crime was committed primarily by Indian companies and Indians.
اور मतलब जो रिश्वत लिए तकरीबन $265 मिलियन की कह रहे हैं रिश्वत इन्होंने दिए हैं, वो सारे के सारे और इंडिया रिलेटेड, यानी रिश्वत देने वाला भी रिश्वत लेने वाला भी, मोस्ट ऑफ द कंपनी, लेकिन उनका एक पार्टनर अमेरिकन था और उन्होंने दे ट्राई टू रेज मनी इन अमेरिका, तो इन्होंने जो बयान दिए वो झूठ थे। बेसिकली उन्होंने झूठ बोलकर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से पैसे वगैरह रेज करने की कोशिश की थी या रेज किए थे, तो इस वजह से भी वो फ्रॉड के केस में आ गए थे, तो अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस और या जूरिसडिक्शन के अंडर उनके ऊपर आ गए। तो देखिए, तो जो जो हुआ है पहले मैं बताता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन कि क्या हुआ, हाउ इट वेंट देयर। ये हुआ कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, अमेरिका में जो लीगल सिस्टम जो चलता है वो इस तरह चलता है। लेट अस से कि आपने कुछ क्राइम किया और उसको पुलिस को रिपोर्ट मिल गई, पुलिस आके उसको इन्वेस्टिगेट करती है। इंडिया की तरह नहीं कि धड़ाधड़ सड़क पे थप्पड़े मार रहे हैं, लाठी मार रहे हैं, पुलिस वाले लॉ अपने हाथ में, वैसा नहीं होता। दे माइट किल यू, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो इन द प्रोसेस ऑफ अरेस्टिंग यू या इन्वेस्टिगेटिंग यू, तो वो आपको इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो सबूत जमा करके वो जाते हैं अपने अटॉर्नी के पास, प्रोसिक्यूटर के पास। जो सरकार का जो लॉयर होता है वो प्रोसिक्यूटर के पास जाते हैं, तो वो प्रोसिक्यूटर देखता है कि क्या इनफ एविडेंस है कि क्राइम हुआ है और ये पर्टिकुलर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम। जब उनको नजर आता कि डिटेक्टिव्स ने, इन्वेस्टिगेटर्स ने काफी अच्छा एविडेंस लिया है, तो वो बंदे को चार्ज करते हैं और फिर अरेस्ट वारंट इशू करते हैं। बास केसेस में वो ग्रैंड जूरी खड़ा करते हैं, खासतौर से इस तरह के केसेस में। तो ग्रैंड जूरी में यह होता कि 16 से लेके 25 तक या कभी कभी उससे भी ज़्यादा जो आम सिविलियंस लोग हैं उनको बुलाते हैं और उनके सामने गवर्नमेंट अपना केस प्रेजेंट करती है। देखो, हमको ऐसा लगता है कि ये क्राइम हुआ है और इस क्राइम में ये सबूत है, और वो विटनेसेस को भी वहाँ पे बुलाते हैं। दिस इज ए क्लोज डोर थिंग। इसमें डिफेंडेंट जो जिसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाया वो और उसका वकील नहीं होता वहाँ पर, सिर्फ गवर्नमेंट का जो वकील है जो केस कर रहा है क्रिमिनल के खिलाफ वो होता है और आम पब्लिक होती है। तो आम पब्लिक के सामने जब, इसको ग्रैंड जूरी कहते हैं क्योंकि बड़ा रहता है, 16, 23, 24, 40, कभी 50 भी होते हैं। तो ये जब ग्रैंड जूरी पूरा केस सुनता है तो वो अगर डिसाइड करते हैं कि हाँ यकीनन इसमें बहुत ज़्यादा सबूत है कि इस शख्स ने क्राइम किया है, तो उसके खिलाफ इंडाइटमेंट होता है, यानी लिख कर प्रोसिक्यूटर आपके खिलाफ चार्जेस फाइल कर देता है कोर्ट में। अब वारंट आ जाता है। तो अदानी के साथ ये सारा हुआ है कि एक ग्रैंड जूरी के सामने अमेरिका के लॉयर्स ने सारा सबूत पेश किया और वो जो लोग सुन रहे थे उनको लगा कि हाँ देयर इज एनफ एविडेंस के इस पर वारंट इश्यू होना चाहिए, और फिर दोनों के लिए, अदानी, गौतम अदानी और सागर अदानी के लिए वारंट इशू है जो इंडिया ने डिलीवर ही नहीं कर सका। इंडिया की सरकार, इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया के मिनिस्टर को गौतम अदानी मिले नहीं 1.5-2 साल में, इसलिए पेपर्स उनको सबमिट ही नहीं कर सके। ये तो अपने पास की कमाल है सरकार। एनीवे, दिस इज इंडियाज लीगल सिस्टम। तो अब ये हुआ कि ये चार्जेस हो, क्योंकि पहले जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, क्योंकि उन्होंने ग्रैंड जूरी बिठाई थी, वो आसानी से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इस आदमी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और हमें इसे रिहा कर देना चाहिए या इसको चार्ज ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि इस आदमी ने क्राइम किया है, बट देयर इज नो एविडेंस, सो वी विल लेट हिम गो। वो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने एविडेंस ऑलरेडी ग्रैंड जूरी को पेश कर दिया है एंड ग्रैंड जूरी सेड कि देयर इज एनफ एविडेंस, अरेस्ट मैन। तो क्योंकि ये हो चुका था, तो अडानी के ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो वकील हैं इस केस में, उनका नाम है ट्रेंट मैककॉर्टर। उनको जज के पास जाके कहना था, जज के हमने डिसाइड किया कि देयर इज नॉट इनफ एविडेंस या कुछ हुआ नहीं वगैरह, हम डिसाइड करते हैं कि ये केस को हम ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ क्राइम किया ही नहीं। ये हमारी ओपिनियन है, ये हमारा जजमेंट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का ये जजमेंट है कि कोई क्राइम नहीं हुआ, हम इनको रिहा कर देना चाहते हैं।
तो टेक्निकली तो जज का काम है कि हाँ कर दें। तो इस जज ने इनसे कहा कि पहले तो इन्होंने एक आध पैराग्राफ ही सबमिट किया था। जज ने कहा ये क्या है, तुमने तो इंडाइटमेंट तुम्ही ने जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ नहीं कराई थी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ही इन्वेस्टिगेशन किया था। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जो FBI के लॉयर्स हैं, इन्वेस्टिगेटर्स, इन्होंने सब तय किया था कि बहुत सबूत है, इसलिए आपने वारंट इश्यू करे। तो मुझे बताएं कि वो सबूत गलत क्यों थे, जो आप समझ रहे थे सबूत है, मुझे अब समझाए कि वो गलत क्यों है। दैट इज व्हाट द जज आस्क्ड। इनकी किस्मत ही खराब है कि इनको करप्ट जजेस मिलते ही नहीं। देयर आरंट मेनी करप्ट जजेस, आइडियोलॉजिकली बायस जजेस होंगे, बट ऐसा करप्ट जजेस नहीं है अमेरिका में उतने। तो फिर ये जज ने जब ये पूछा तो इन्होंने फिर एक लंबा केस किया और जज के सामने गए। तो जज ने जो जजमेंट दिया है उसने इनको खिलाफ जो चार्जेस थे वो ड्रॉप कर दिए। जज ये नहीं कहा कि ही इज नॉट गिल्टी, जज ये नहीं कहा कि ही इज इनोसेंट, जज ने ये भी नहीं कहा कि इनके खिलाफ जो सबूत जमा हुआ है दैट इज नॉट इनफ। एक रूल है अमेरिका में, कुछ 48 कुछ है वो रूल का नाम, उसके तहत अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चार्ज करना एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी स्टेट में गवर्नर, उसका जो अटॉर्नी जनरल होता है, और जो फेडरल लेवल पर द प्रेसिडेंट का जो एग्जीक्यूटिव होता है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, और जो अटॉर्नी जनरल्स होते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चार्जेस वो लगाए। जज का काम तो खाली जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो करें। तो जज ने कहा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये आपका हक है, मैं ये इनको रिहा कर रहा हूं, जो आपने रिक्वेस्ट किया, आई एम ड्रॉपिंग इट, बिकॉज द जज कैन नॉट से नो, बिकॉज लेकिन अब यहाँ पे कमाल होता है, ये जो लेकिन बोल के जो इस जज ने जो बातें की है, ये आपका प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट दैट। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। और दो चीज़ें फिर मैं बाद में सब पैसे की जो अदानी ने खर्च किए हैं इस मुल्क में वो भी बताऊंगा आपको। तो जो जज ने कहा कि बेसिकली द जज ने कहा कि डू नॉट अज्यूम कि ये डिसीजन इज, पहले तो उन्होंने कहा जज गरॉफ इज डिस्क्राइब द प्रोसेस एज कंसर्निंग एंड हाईली अनयूजुअल। तो उन्होंने कहा ये फिक्रमंद है और बहुत गैर मामूली डिसीजन है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक पॉलिटिकल अपॉइंटी, सिर्फ एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, यानी कोई करियर जो अटॉर्नीज होते हैं वो नहीं, एक जिसको ट्रंप ने अभी अपॉइंट किया उसने अकेले ने डिसाइड किया कि इनका केस ड्रॉप हो जाना चाहिए। इनके खिलाफ जिन्होंने इन्वेस्टिगेशंस किए, इनके खिलाफ जिन्होंने ग्रैंड जूरी बिठाए, इनके खिलाफ जिन्होंने ग्रैंड जूरी में केसेस प्रेजेंट किए, और फिर जो FBI के जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, जो दूसरे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के दूसरे इन्वेस्टिगेटर्स थे, ये सारों ने जो इन्वेस्टिगेशंस की, इन्होंने किसी ने कुछ भी स्टेटमेंट दिया ही नहीं कि ये सारा इनको ये केस ड्रॉप होना चाहिए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल अपॉइंटी के बेसिस पे ये केस तय हो रहा है। दिस इज वेरी अनयूजुअल, वेरी कंसर्निंग, क्योंकि जो लोग इन्वेस्टिगेट किए हैं वो चुप खामोश हैं। कई लोगों ने बिल्कुल अपने आप को बरी कर दिया कि वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस। इनफैक्ट जो डोनाल्ड ट्रंप का जो अटॉर्नी ने ये फाइल किया, उसका नाम है ट्रेंट मैककॉटर, इसके साथ जो असिस्टेंट ने फाइल किया, उसने एक अलग एफिडेविट दी कि ये डिसीजन में मेरा कोई रोल नहीं है। उसने फोन स्टेटमेंट यानी कसम खा के बयान दिया कि ये डिसीजन जो ले रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि वो खुद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने खुद लिखा है सारा केस, कह रहे हैं इसमें मेरा डिसीजन नहीं है, ये सिर्फ ये पॉलिटिकल अपॉइंटी जो है उनका डिसीजन है। दिस इज अ वेरी अनयूजुअल, बहुत ही अनयूजुअल। मुझे लगता है कि लॉ स्कूल्स में तो ये बड़ी मजे से लोग पढ़ाएंगे विद हैरत अंगेज कि इतना खुले आम करप्शन हो रहा है अमेरिका में थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। तो एक चीज तो ये कहा जज ने। दूसरी चीज जज ने कहा कि भाई आप इस डिसीजन को ये ना समझे कि दिस इज ऑन द मेरिट ऑफ द केस पे नहीं है, ये इसने साफ लिख दिया, this is not on the merit of the case. No one should mistake the dismissal for the court's agreement with the Department of Justice
or for an opinion about the merits of the case. जज ने कह रहा कि ये जो डिसीजन है इसको आप ये ना समझे कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से अग्री करता हूं. He doesn't agree. दूसरी चीज उसने कहा कि ये भी ना समझे कि मैंने ये केस की जो मेरिट्स है यानी सबूत सही हैं या गलत हैं, क्राइम हुआ है या नहीं, इस पे ये जजमेंट नहीं है. ये सिर्फ सरकार का हक है कि वो ड्रॉप करे केस और मैं उस पे जजमेंट दे रहा हूं. He made it very clear कि this is just unusual, very weird. पढ़ें आप, वो 56-57 पेजेस का है, मैं आपको दिखाऊंगा भी. थोड़ी जाते जाते आपको पूरा जजमेंट दिखा देता हूँ, बट पहले लेट मी फिनिश व्हाट आई वांट टू से. दूसरी चीज ये है, उन्होंने जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के भी जो क्रिटिसिज्म्स किए वो बहुत हैरत अंगेज है. उनके एक एक आर्ग्यूमेंट के खिलाफ. फॉर एग्जाम्पल मैककॉटर ने कहा देखो ये फॉरेन केस है, इंडिया का नाम 200 बार लिया गया. तो जज ने जवाब दिया वो तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स का भी कई बार नाम लिया गया, इट डजंट मीन एनीथिंग. और फिर उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशंस इंडिया की तरफ से आए, तो उसने कहा कि इंडिया में तो इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं हुए, कहाँ इंडिया के इन्वेस्टिगेशंस वगैरह. तो उसने सिस्टमैटिकली ही वेंट थ्रू ऑल ऑफ इट सेइंग कि इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल. तो उसने फाइनली जो जजमेंट दिया, ही डिस्क्राइब द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक्सप्लेनेशन एज एट बेस्ट इनसफिशिएंट एंड एट वर्स्ट मिसलीडिंग. यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो केस प्रेजेंट किया है, इसे कम से कम तौर पे देखे तो ये इज नॉट एनफ आर्ग्यूमेंट्स इनके कि इसको क्यों छोड़ना चाहिए. और फिर कहा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ये मिसलीडिंग है. तो बेसिकली ये बात मैं आपके सामने साफ साफ कह दूं कि इस जज का जो डिसीजन है, it does not say कि गौतम अडानी is innocent of all the crimes that he has made. और मैं बताऊंगा, डोंट वरी, के फाइन्स वगैरह क्या लगे थे, क्यों लगे थे, वो भी बताऊंगा आपको और उसके क्या मतलब निकलते हैं. बट ही ऑल्सो मेड इट वेरी क्लियर कि ये मेरिट जो केस का जो है मेरिट्स हैं उस पर तय नहीं हो रहा. तो अब आप वो जजमेंट ही देख लें. ये जजमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट मेमोरेंडम एंड ऑर्डर, ये इसका नंबर है, आप जाके देखें. गौतम अडानी, सागर अडानी, विनीत जैन वगैरह वगैरह सब रूपेश अग्रवाल, दीपक, इन सब के खिलाफ ये केसेस है. अभी तो रिहाई सिर्फ 3 लोगों की हुई शायद मेरे ख्याल से, बस गौतम अडानी और सागर अडानी की ही. तो ये सब के खिलाफ तो रूल ऑफ फेडरल रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यूनाइटेड ऑफ अमेरिका, ये है रूल 48A, जिसके तहत इन्होंने इसको रिहा कर दिया. बट लुक एट दिस केस, ही गोज इनटू डिटेल्स, अनबिलीवेबल डिटेल्स, और बहुत जबरदस्त आर्ग्यूमेंटेशन की स्किल्स हैं इस बंदे की. ही शुड बी इन द यूएस सुप्रीम कोर्ट. और मतलब देखिए आप जिस रूल के तहत उसने जजमेंट दिया है, ये रूल के तहत, उसके बारे में देखिए आप कितना डिटेल से उसने किया. फिर उसने डिस्कशंस भी किया, द प्रॉफर्ड रीजंस फॉर डिसमिसल, उसके खिलाफ भी लिख दिया कई चीजें. और in the end, this is a very thorough. I was very impressed, I must say, with this judge. बहुत ही जबरदस्त जजमेंट है. तो इसका ये कंक्लूजन है, as noted throughout this opinion, the irregularities in the decision to dismiss the indictment are concerning. तो इन्होंने कहा, जैसा मैंने पूरा जजमेंट में बार बार दिखाया है, the irregularities in the decision, ये जो अजीब लफड़े हैं इसमें, वो बहुत ही ज्यादा फिक्र पैदा करने वाले हैं, concerning. On the current record, Mr. Cotter appears to have eschewed the professional opinions of innumerable officials from various federal offices and replaced them with his singular judgment. वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैक कॉटर ने कई बेगिनत ऑफिशियल्स की जो पोजीशंस हैं, इन्वेस्टिगेटर्स, जजेस, FBI और दूसरे इन्वेस्टिगेटर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, दूसरे अटॉर्नीज, उन सब की ओपिनियन अलग रख दिया और सिर्फ अपने जजमेंट के, सिर्फ खालिस अपने ही जजमेंट के बेसिस पे ये रिक्वेस्ट फाइल की है.
or it was total, taking no position on the ultimate propriety of Mr. Gofra's repeat attempts to resolve the bribery case. तो अब ये छोड़े, मैं आपको बताता हूँ और क्या है, आप लोग पढ़े जाकर इफ़ यू वांट, अगर आप चाहें तो ये जजमेंट का मैं लिंक लगा देता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप फुर्सत से पढ़ें. बट देयर इज समथिंग एल्स यू नीड टू नो, और वो है ये चीज़ कि ये पैसे का जो मामला हो. तो अदानी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए थे, कई किस्म के इल्ज़ाम थे. एक इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने ब्राइबरी की है, $265 मिलियन की ब्राइब्स दी हैं, तो वो ड्रॉप कर दिया क्या. लेकिन वो केसेस ड्रॉप होने के लिए गौतम अदानी ने $6 मिलियन का फाइन भरा है, और फाइन भरने के बाद जो ड्रॉप हुए चार्ज उनके खिलाफ, वो ना तो उन्होंने कहा कि मैं गिल्टी नहीं हूं, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. बाद वक्त क्या होता है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप गिल्टी हैं और फिर सजा भुगतते हैं. तो ये सजा भुगत रहे हैं. लेट मी रिपीट इट अगेन, ये सजा भुगत रहे हैं, ये सजा भुगत रहे हैं. सजा है $6 मिलियन का फाइन. और ये और बात है कि ना तो उन्होंने कहा मैं गिल्टी हूं, ना गवर्नमेंट ने कहा कि तुम इनोसेंट हो. So neither there is admission of guilt nor admission of innocence from the government side. सागर अदानी के ऊपर $12 मिलियन का फाइन लगा हुआ है. तो ये फाइन क्यों दिए? अगर आप मासूम थे और आपके पास एविडेंस नहीं था, आप कहना था कि नहीं, लेट्स गो टू कोर्ट, लड़े केस, पैसा तो बहुत है, कई लॉयर्स को हायर करके. तो ये जो किया है इन्होंने, बिकॉज ही न्यू कि अगर केस होता तो हार के जेल चले जाते दोनों. तो और फिर एक केस था कि ईरान के जो सैंक्शंस थे, ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका ने, उसको इन्होंने वायलेट किए कुछ 30-31 बार. तो उसके ऊपर भी $275 मिलियन का फाइन लगा, यानी तकरीबन 27 करोड़ $, 27 यानी 2,700 करोड़ रुपये का फाइन लगा. तो इन्होंने 3 किस्म के फाइन पे फाइल किए, एक $275 मिलियन, एक $6 मिलियन, एक $12 मिलियन, फॉर टोटल $293 मिलियन. फिर इन्होंने पब्लिकली बयान किया, ट्वीट किया और कहा कि अमेरिका में ये $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, और वो $10 बिलियन अमेरिका में 15,000 जॉब्स क्रिएट करेगा. क्यों? इंडिया में जॉब्स की इतनी कमी है, आप इंडिया में कमिट कर लेते, 15,000 जॉब इंडिया में जनरेट कर देते. यहाँ पे तो हर जॉब इतना महंगा होगा, 50-60 हज़ार, $1 लाख की तनख्वाहें, उसमें तो आप 15,000 के बजाय शायद 15 लाख जॉब्स क्रिएट कर सकते थे इंडिया में. बट यू आर नॉट डूइंग दैट. ये क्यों कर रहे हैं अमेरिका में 15,000? क्योंकि इसका जो फंड्स ये आएंगे, ये ट्रम्प की फैमिली के थ्रू करेंगे. देखना आप मुझे, ये है करप्शन कि डोनाल्ड ट्रम्प ने, कि इस गवर्नमेंट ने इनसे 10 बिलियन डॉलर का इनडायरेक्ट रिश्वत ले ली है. ठीक है, वो अमेरिका में जॉब्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, लेकिन अमेरिका की जो जस्टिस सिस्टम है और अमेरिका का जो नियम है और अमेरिका का जो लॉ है, उसकी इन्होंने तौहीन की है दोनों ने मिलकर. सब के सब चोर हैं. There is nobody is innocent in this case. Thank you for watching Conversation. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें. मैं देख रहा था एटलीस्ट सोशल मीडिया पे इतना तफसील से किसी ने इस केस को समझाने की कोशिश नहीं की. आप अब इसको ज़रूर देखें, मैं लिंक लगा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप खुद पढ़ लें और डिसाइड कर लें. थैंक यू वेरी मच. बाय.